Fog, a mystical phenomenon that blankets our senses, obscuring the world around us. In the world of poetry, fog serves as a metaphor for the unknown, the ambiguity of life, and the enigma of existence. It is in this mystical ambience that Ignited Minds Tutorials aims to shed light, providing clarity and understanding to the foggy realm of poetic verses. Through comprehensive analysis and deep exploration, Ignited Minds Tutorials dives into the core of fog-related poetry, unraveling hidden meanings and nuances. This knowledge-driven article elucidates the power of fog as a literary device, showcasing how poets utilize its ethereal nature to convey emotions, ideas, and profound insights. Delving into classic verses, from Robert Frost's The Fog to Emily Dickinson's The Fog Comes on Little Pat Feet. Ignited Minds Tutorials dissects the juxtaposition between the physical fog and the metaphorical implications it carries. By uncovering intricate literary techniques, such as symbolism, personification, and imagery, this article unveils the layers that poets intricately weave into their fog-themed works. Furthermore, readers will discover the cultural and historical contexts that shaped the prominence of fog in literature, as well as the psychological effects it may evoke within the human psyche. With Ignited Minds Tutorials as your guiding light, embrace the dense mists of fog poems, as this knowledge-driven exploration promises to dissipate confusion, providing a comprehensive understanding of the captivating world within these verses. So we'll try to cover up two poems. One is your fog and the other one क्या था बाकी भाई साहब आपका एक था fog और ऊपर और क्या था हाँ from Anne Gregory ना ठीक है ओके सो विल स्टार्ट विद द पोएम द फॉग ठीक है छोटा सा पोएम है बहुत ही इनफैक्ट सबसे छोटा पोएम होगा आपका फायर एंड आइस भी छोटा है और क्या कौन सा था तो खैर the eternal enigmatic nature of fog and its effect on the senses are the central themes in कार्ल सैंडबर्ग्स पोएम द फॉग ठीक है ये फॉग जो फॉग बेसिकली होता क्या है आप बहुत अभी जैसे आपको एक क्लाइमेट मिल रहा है ये मिस्टी टाइप का क्लाइमेट है ठीक है जनरली इस टाइप का क्लाइमेट नहीं होता है लेकिन अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो काफ़ी सारा डेंस फॉग होता है इस टाइम पे जनवरी वगैरह के टाइम पे स्पेशली इन द अर्लियर पार्ट ऑफ जनवरी एंड द लेटर पार्ट ऑफ दिसंबर इन नॉर्दर्न प्लेन्स यू विल हैव अ वेरी फॉगी एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा फॉग कि आपको वैसा रास्ते गली ना दिखें एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इस टाइम पे ठीक है क्योंकि दिखता नहीं है ठीक से इनफैक्ट फॉग हटते हटते दोपहर के 12-1 बज जाते हैं तब जाकर थोड़ा सा धूप देखने का मौका मिलता है इट सीम्स एज इफ द एंटायर क्लाउड्स हैव कम डाउन ठीक है सो ये कोल्ड क्लाइमेट का एक असर होता है अकॉर्डिंग तो फॉग मतलब एक रेस्टफुल हो जाता है मतलब वो क्लाइमेट में इंसान और कोई भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता है ना आप क्या ही खेलने जाएंगे कोई सा भी स्पोर्ट्स अगर आप खेलेंगे तो फॉग में क्या खेलेंगे ठीक है सो ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं रहता है पूरे एटमॉस्फेयर में इट इज बेसिकली मेक्स द एटमॉस्फेयर वेरी सीरीन एंड काम ठीक है अकॉर्डिंग टू द पोएम द ऑनसेट ऑफ फॉग is likened to appearance of a silky grey blanket that covers the city and muffles sounds to produce a sensation of calm and silence ठीक है तो एक काम और साइलेंस का एटमॉस्फेयर हो जाता है ठंड के दिनों में होता है ये ज़्यादा करके एंड इट बेसिकली हम ये पोल्यूशन वाले फॉग की बात नहीं कर रहे हैं हम नेचुरल वाले फॉग की बात कर रहे हैं आज की तारीख में जो बहुत सारे मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको एनवायरनमेंट दिखता है वो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से फॉग है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फॉग दैट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग कोल्ड ठीक है सो मफल साउंड प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ काम एंड साइलेंस एक बड़ा काम और साइलेंट एटमॉस्फेयर हो जाता है द पोएम एड्रेसेस द नोशन that fog has the power to change the familiar into the foreign and to hide the world's reality तो ऐसे मतलब पूरा वर्ल्ड पे ये कवर हो जाता है वर्ल्ड की रियलिटी को ये कवर कर रहा है जैसे आप अगर एक ब्लैंकेट ओढ़ लेंगे तो बचपन में खेलते हैं ना ब्लैंकेट ओढ़ के कौन है ब्लैंकेट के अंदर ऐसा यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज द पर्सन हु इज इनसाइड द ब्लैंकेट ठीक है तो इसी तरह से पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक ऐसा ब्लैंकेट की तरह हो जाता है एज इफ इट इज कवरिंग द एंटायर वर्ल्ड and hiding the entire world ठीक है
The poem's emphasis how nature may change us and how it affects our senses and emotion. तो पोएट बेसिकली एम्फसाइज कर रहा है कि कैसे नेचर का प्रभाव हम पे पड़ता है, बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा ठंड, स्नोफॉल, फॉग, इन सब का हमारे ऊपर एक असर आता है, ठीक है. नेचर बेसिकली अफेक्ट्स ऑल ऑफ दिस. फॉग इज अ वेरी स्मॉल पोएम, बहुत ही स्मॉल सा पोएम है ये, रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग. ही हैज डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ अराइवल ऑफ द फॉग इनटू अ सिटी एंड द हार्बर. ठीक है, तो अराइवल ऑफ द फॉग इनटू अ सिटी एंड द हार्बर, ही हैज वेरी ब्यूटीफुली कंपेयर्ड इट टू अ कैट. तो इन्होंने भाई साहब कंपैरिजन ड्रॉ किया किसके साथ, एक कैट के साथ. ठीक है, कैट के साथ ड्रॉ किया है. द पोएट सेज दैट द फॉग व्हिच इज जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर सीजन इज कमिंग टुवर्ड्स द सिटी एंड द हार्बर जस्ट लाइक अ कैट. तो विंटर सीजन में ज्यादा करके देखने को मिलता है, और हार्बर और सिटी में ये ऐसे अप्रोच हो रहा है जैसे कोई स्लोली और साइलेंटली कैट मूव हो रहा हो. ठीक है, दिस मीन्स दैट इट इज अप्रोचिंग द सिटी इन अ वेरी साइलेंट मैनर सो दैट नो वन कैन नोटिस द अराइवल. ठीक है, बड़े साइलेंट तरीके से ये सिटी में अराइव कर रहा है. ठीक है, तो इट इज अप्रोचिंग लाइक दैट. दिस मीन्स he has compared its arrival to that of a cat because a cat always enters a place very silently. बहुत silently कोई भी place में वो enter करता है. ठीक है, next he says that the fog has covered the whole of the city and harbor and appears as if it is sitting by folding its legs and looking around just the way a cat does when it sits on the haunches and looks around. तो जैसे कैट वैसा बैठता है और बहुत धीरे से इधर उधर देखता है. कैट सबसे लेजी एनिमल्स में से एक है, तो फॉग भी भाई साहब अपना एक लेजी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. ठीक है, haunches and looks around. At the end he describes the departure of the fog which is very silently and unpredictably, again similar to the departure of the cat, vanishes. Cats ऐसे होते हैं कि अभी आप देखेंगे अभी नहीं है, अभी आप देख रहे थे उसको, अभी आप मुड़ के देखेंगे तो नहीं है. कैट्स बहुत ऐसे साइलेंट क्रिएचर्स होते हैं. ठीक है, सो कैट्स आर लाइक दैट. तो हमारा फॉग भी जो विंटर क्लाइमेट में बेसिकली जगहों पे पाया जाता है, ठीक है, ये भी इस तरह से पटक से वैनिश हो जाता है. धूप निकलती है और इट सीम्स टू बी अ नॉर्मल डे, whereas it is not a normal day. दोपहर के 11-12 बजे तक डेंस फॉग रहता है. ठीक है, ओके. द पोएम द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. तो बड़े धीरे धीरे भाई साहब कैट फीट में, मतलब कोई बिना आवाज किए. ठीक है, कैट फीट. इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन. थोड़ी देर रहता है और फिर चला जाता है. तो लाइक अ कैट विच बेसिकली कम्स, सिट्स, लुक्स हियर एंड देयर एंड अगेन मूव्स ऑन. ठीक है, वैनिशेस. Fog is a thick cloud of tiny water droplets present in the atmosphere. स्पेशली आपको विंटर में देखने को मिलता है ये. हार्बर मतलब पोर्ट और डॉक. तो सिटी और हार्बर, कोई पोर्ट सिटी की बात हो रही है बेसिकली. ठीक है, तो सिटी भी और हार्बर भी है. ठीक है, और इसमें फॉग और हॉन्चेस, सिटिंग विथ नीज बेंड. तो इस तरह से जब हम बैठते हैं नीज को बेंड करके, तो उसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे. ठीक है, तो द पोएट इज डिस्क्राइबिंग फॉग. फॉग इज व्हाट, अ थिक क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. इट इज जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ज्यादा करके हमको ये विंटर सीजन में देखने को मिलता है. ठीक है, हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द एडवांटेजेस ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ फॉग टुवर्ड्स द सिटी एंड द हार्बर. किस तरह से स्लोली ये पूरा फॉग जो है तो सिटी और हार्बर में एडवांस कर रहा है. ठीक है, जस्ट लाइक अ कैट, बड़े स्लोली, कूलली और कामली ये भाई साहब एक कैट की तरह धीरे धीरे सिटी और हार्बर की तरह मूव कर रहा है. ठीक है, One never knows how and when the fog will enter the city. किसी को मालूम नहीं है, आकस्मिक आएगा ये. ठीक है, therefore fog is compared to the cat which enters our home in an unpredictable manner. ठीक है, बड़े unpredictable manner में ये हमारे enter, जैसे अगर बिल्ली आपके घर में घुसती है आपको पता भी नहीं चलेगा, टप से घुस जाएगी. ठीक है, तो मतलब चूहा घुसेगा तो भी पता चल जाएगा आपको, लेकिन बिल्ली का कोई आवाज ही नहीं होता है. वेरी साइलेंटली इट एंटर्स. ठीक है, तो in an unpredictable manner. Next he says that the fog sits over the whole of the city as a cat sits silently by folding her legs behind itself and looks around the nearby places and things. So just as a cat very slowly and silently sits and looks for things around, okay, in the same way the fogs also very coolly and calmly it sits over the entire city. Similarly, it seems that the fog silently covers the whole of the city and the harbor and is sitting over them looking around like a cat. After a while the fog leaves the city and moves on. The poet says so because it is a natural phenomena that fog does not stay at a place for long and leaves the place after a few hours. ठीक है, तो fog जो है बहुत देर तक कहीं पे रुकता नहीं है और कुछ देर बाद भाई साहब ये मूव आउट कर जाता है. It leaves the place. ठीक है, so here also the poet says
that just like a cat, the fog leaves the place very silently without being noticed by anyone. तो very silently it will leave the place without being noticed by anyone. क्लियर है, समझ में आ रही है? So ये आपका एक fog का ओके. लिटरेरी डिवाइसेस, फॉग इज कंपेयर टू अ कैट. फॉग को हमने किससे कंपेयर किया है? वैसा कैट से कंपेयर किया है पोएट ने. ऑन अ लिटिल कैट फीट. राइमिंग स्कीम क्या है? देयर इज नो राइम स्कीम. ऑब्वियसली इस पूरे पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, सो इट इज रिटन इन फ्री वर्ड्स. एंजैबमेंट, व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन. इट सिट्स, तो यहाँ पे देखो, अगर इस पूरे पोएम को देखोगे, इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड द सिटी ऑन साइलेंट ऑनचेस एंड देन मूव्स ऑन. तो ये पूरा एक लाइन है जो 3-4 लाइन में अपीयर हो रहा है. दिस काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइस इज नोन एज एंजैबमेंट. ठीक है, इसको अपन बोलेंगे एंजैबमेंट. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस पोएम पीपल?